welcome to Automation Code Lab channel. This is Manish here, and today we are going to go through Python data types, keyboards, and functions to understand more in details. Before we go ahead in details, I just want everyone to understand generally we use keywords in Python. So, what are these keywords? So, generally, if you see false, none, true, and as, assert, async, await, break, class. All these are keywords. So these keywords are utilized everywhere as we go ahead. And we'll also be using it as we go ahead. For example, for boolean case we'll be using true false. For verification we'll use assert. Okay, and for function we'll use def and all. So similarly for statements, conditional statement, we'll use if, elif, else, and all. We'll see that. Now, going ahead to the next part, which I want to take up is data type. What exactly data types are in Python? So, if you see my screen, folks, so over here, the general category of data types are they can be various categories: numeric, dictionary, Boolean, set, and sequence types. So, numeric can be of three categories: the integer numbers that we generally give, the second being the decimal number, which we call it as float here, and the complex number, which comes with the imaginary number associated with it. Dictionary will see the dictionary how exactly we have our words for the dictionary, where we'll be having the key and the respective values to be associated to the respective dictionaries. And then we have a boolean where we'll have the true or false to be there. Set will have kind of where you can only have the unique value stored over there. And in the sequence type, we'll have string, list, and tuple. So we'll see in detail about it. And as in things we go ahead, I just wanted to give you guys a overview of what exactly function is. So generally in Python, we define the function by def keyword. So def, and then you give the function name. And as you can see on my screen, there's a parameter that we have. And then you have your statement. And a function can return respective statement by using the return keyword. Okay, so this is a general syntax of the function. Let us go ahead and see the examples of the data type. So for everyone who's new to Python, in my last session we told how to go ahead and install the PyCharm, and you can go ahead and create your respective project. And for creating a respective Python file, you can right click on the project, click on new, and click on the Python file and give the name of the file over here. तो उसके बाद जो आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल सी एन एग्जांपल हाउ एग्जैक्टली इन डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, एक ए है हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने 5 असाइन कर रखी है. 5 इज गेटिंग असाइन टू द वेरिएबल ए. और उसका टाइप हम जानने की कोशिश करें. सिमिलरली 5.0 है, 2+4j है. ये सारे हमारे अलग अलग न्यूमेरिक टाइप्स है, डेटा टाइप्स है. तो मैं सिर्फ सेलेक्टेड पीस ऑफ कोड को रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने कंसोल में रन करूंगा मैं एग्जीक्यूट सिलेक्शन इन दी पाइथन कंसोल, ताकि मैं सिर्फ सेलेक्टेड कोड को ही सिर्फ आपको दिखा पाऊँ. तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? टाइप ऑफ ए जो हमारा ए क्या है वो है इंटीजर, बी क्या है हमारा फ्लोट, और सी क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने बात करी थी अभी. और बुलियन के लिए तो सिंपल है कि ट्रू और फॉल्स हमारा जब भी रहेगा तो उस केस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारा बुलियन क्लास. पर अगर यही ट्रू, अगर हम टी स्मॉल या फॉल्स में एफ स्मॉल देंगे तो उस केस में हमको एरर देगा. जैसे अगर मैं आपको हटाऊं तो अगर देखो तो यहाँ पे इट इज गिविंग मी एरर एट ट्रू. सो प्लीज मेक श्योर दैट केस सेंसिटिव जहाँ पे भी हम बुलियन वैल्यूज दें वो ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली ही लेगा. ना कमिंग बैक टू स्ट्रिंग गाइज. सो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं. तो मेरे करंट कोड में अगर आप देख पा रहे हैं जो लाइन नंबर 23, स्ट्रिंग 1 को हमने डिफाइन किया है वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, किससे? सिंगल कोड से. सो हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं? सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड से भी डिनोट कर सकते हैं. और इसको ही हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता है प्रिंट करने के लिए. तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस लाइन को प्रिंट करेंगे तो अगर आप देख सकते हैं तो क्या लिखे, क्लिक क्या आ रहा है हमारा? वेलकम टू हेलो वर्ल्ड. सिमिलरली अगर सिर्फ ये पीस ऑफ कोड को अगर मैं रन करने की कोशिश करूंगा जो डबल कोट में लिखा हुआ है, वो भी इट इज गोइंग टू प्रिंट क्या हमारा? आई एम अ ऑटोमेशन कोड लैब. एंड देन सिमिलरली अगर और हमको अगर ये तीसरा जहाँ पे 3 डिफाइन कर रखा है हमने सिंगल कोड्स, वहां पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं गाइज, कि ये हमारा रेस्पेक्टिव स्ट्रिंग ले रहा है.
ओके, सो इसी तरह से हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या देगा, हमारा रेस्पेक्टिव आउटकम। सी देखिए, गीक्स फॉर लाइफ। ओके, ना हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये काफी दिलचस्प बात है इसमें समझने की, कि हमारा एक स्ट्रिंग है ऑटोमेशन कोड लैब, उसका इनिशियल स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी समझाता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। तो पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है, इनिशियल स्ट्रिंग का ए, तो इसीलिए वो इनिशियल स्ट्रिंग उसने क्या ले रखा है, ए। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे, जैसे इनिशियल स्ट्रिंग जो आप देखो, वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमने प्रिंट कर रखा है, उसमें कोई डिफाइन नहीं किया है, पर यहाँ पे हम इंडेक्स देते हैं कैरेक्टर्स के लिए। जैसे मैंने कहा था क्या है, स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो ऑटोमेशन कोड लैब है वो कैरेक्टर्स के रेस्पेक्टिव इंडेक्स मेमोरीज पे आप सोच लो कि स्टोर्ड है, जो स्टार्ट होता है जीरो से, तो ये मेरा जीरो से स्टार्ट होता है एंड वाइस वर्सा जाता है। इंडेक्सिंग पाइथन में दोनों तरह से हो सकती है, हम स्टार्ट से चालू कर सकते हैं जीरो से, या फिर लास्ट एलिमेंट से चालू कर सकते हैं, यहाँ से जैसे बी मेरा -1 है, फिर ए क्या होगा, -2 -3 वैसे। तो अगर आप मेरे करंट कोड पे देख पा रहे हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, जीरो से ए है, तो इसलिए वो ए प्रिंट करता है, और -1 लास्ट कैरेक्टर क्या है हमारा गाइस, बी, सो बी। तो ये है हमारा एक्स, कैसे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू लिस्ट गाइस, सो लिस्ट बेसिकली होता क्या है। सो लिस्ट आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने जावा में देख रखा है, जावा में भी हमारे पास लिस्ट रहता है कि कलेक्शन ऑफ, मतलब बेसिकली हम सिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शन को हम बात करते हैं लिस्ट। तो इसी केस में गाइस यहाँ पे अगर हम मेरे कोड पे देखेंगे guys, before we go ahead to list, एक और point I wanted to share with you everyone is that string जो है वो immutable है, मतलब एक बार उसको क्रिएट किया गया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बेसिकली उसके रेफरेंस को अपडेट करते हैं, अगर एक सेम ही चीज करते हैं तो एक ही स्ट्रिंग की वैल्यू को रेफर करते हैं, तो उसी जो मेमोरी में स्टोर्ड है उसी को पाइथन रेफरेंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग मनीष नाम से मैंने स्टोर कर रखा है, और कोई दूसरा स्ट्रिंग में मनीष करते हो, तो वही जो पहली बार जब वो बनेगा तो क्रिएट होता है, पर उसको हम जाके चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई और बंदा अगर सेम मनीष से नाम से स्ट्रिंग बना रहा है, तो वो क्या करे, उसी जो मनीष के इंस्टेंस क्रिएटेड है उसी को रेफरेंस करता है पाइथन में स्ट्रिंग। ओके, अब लिस्ट बेसिकली क्या है गाइस, जैसे एरेज क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। तो वो डायनेमिक साइज एरेज लिस्ट को कहते हैं, जैसे बाकी और लैंग्वेजेस में होता है। ये म्यूटेबल है, मतलब हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं बनाने के बाद, जब ये बनता है उसके बाद हम ऑल्टर किया जा सकता है इसको। और लिस्ट में हम डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं, तो डुप्लीकेट्स सेम अगर चाहिए तो हम लिस्ट में सेम वैल्यूज बार बार पुश कर सकते हैं। नाउ सी ओवर हियर, लिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने लिस्ट क्या रखा, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। तो इनिशियल ब्लैंक लिस्ट है हमारा, और उसके बाद फिर हमने लिस्ट में क्या एक एलिमेंट डाला है, ऑटोमेशन कोड लैब। ओके, अभी जैसे मैं आपको ये सिर्फ यही पीस ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, देखिए हमारे क्या है, ऑटोमेशन कोड लैब अभी तक डाला गया है। और फिर अगली लिस्ट में हम क्या डालते हैं, लिस्ट में डालते हैं ऑटोमेशन कोड लैब, और फिर क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, जीरो और सेकंड एलिमेंट। जीरो एलिमेंट ऑटोमेशन होगा और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, लैब हमारा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, ऑटोमेशन और लैब। नाउ सीइंग दी नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें दिख रहा है, हम ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, बेसिकली मल्टी डायमेंशन लिस्ट है। तो मल्टी डायमेंशन की लिस्ट कैसे है, जैसे मान के चलिए ये एक लिस्ट है, इसका पहला जो एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट है, वो खुद एक लिस्ट है। ठीक है, जीरो ऑफ जीरो बेसिकली ऐसा हो जाएगा ऑटोमेशन, मतलब लिस्ट ऑफ जीरो ऑटोमेशन हो जाएगा। ओके, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। सो ये कैसे दिखता है, इफ वी सी दिस इज हाउ और रेस्पेक्टिव हमारा मल्टी डायमेंशन लिस्ट ऐसा दिखते। ओके, ना कैसे फेच किया जाएगा एक बार देखते हैं कोड के थ्रू। सेम पीस ऑफ कोड है, इसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स से फेच करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से -1 से चालू करता है। सेम उसी तरह से इट इज गोइंग टू हैपन इवन फॉर व्हाट, इवन फॉर दी लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप मेरी कोड देख पा रहे हैं तो देखेंगे पहला जो लिस्ट ऑफ जीरो क्या है, ऑटोमेशन रिटर्न किया है इसने, और लिस्ट ऑफ टू क्या है, हमारा लैब। लिस्ट ऑफ -1 क्या है, हमारा लैब लास्ट से, और -3 मतलब -1 -2 -3 ऑटोमेशन, दैट इज द रीजन। ओके, नाउ टपल की बात करते हैं। टपल हमेशा हम लोग क्लोज ब्रैकेट ब्रेसेस से बात करते हैं।
स्मॉल ब्रेसेस से बात करते हैं, उसको हम टपल कहते हैं। तो टपल बेसिकली क्या होता है? टपल हमारे लिस्ट जैसा ही होता है, बट ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। टपल और लिस्ट में ये डिफरेंस है कि टपल्स हमारा इम्यूटेबल है, मतलब एक बार उसको क्रिएट कर दिया गया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को कर सकते हैं गाइस। ओके, तो जैसे हमने देखा था वैसे ही उसी तरह इटरेट करता है टपल में भी। जैसे एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि हमने ये एम्प्टी टपल डिफाइन करने की कोशिश करी है, अम, तो हमारा एम्प्टी टपल आया है और फिर बाद में हम लोगों ने टपल 1 में ऑटोमेशन कोड डाला है, तो वही अगर हम रन करेंगे तो वही हमको ऑटोमेशन कोड दिखेगा। और ये जैसे एक लिस्ट है, एक लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? टपल ऑफ जो लिस्ट है हमारा, तो क्या कन्वर्ट कर देगा इसको? इट विल कन्वर्ट इट इनटू टपल। देख पा रहे हैं, ये लिस्ट था स्क्वायर ब्रैकेट, उसको कन्वर्ट किया हमने टपल में। ओके, और एक और टपल है, जैसे हमने इसको टपल ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट किया, मतलब एक ऐसे भी टपल हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फंक्शन। तो यहाँ पे टपल एज अ फंक्शन भेज रहे हैं, उसका पैरामीटर ऑटोमेशन एज अ स्ट्रिंग है। तो ये जाके क्या क्रिएट करेगा? सी इट विल क्रिएट व्हाट? ऑल दीज थिंग्स। एंड व्हाई डू यू सी, ये ऑटोमेशन नाम के एक क्यों नहीं क्रिएट किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग क्या है? कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो सारे कैरेक्टर्स को वो टपल में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली अभी ये देखते हैं कि बाकी टपल्स, अभी जैसे ये देख पा रहे टपल 1 टपल 2, दो टपल्स हमने डिफाइन किया है, और टपल 3 क्या रखा है? ये दोनों टपल का बेसिकली इटरेट, मतलब कंबाइंड वे है, दोनों को हम लोग मिला रहे हैं। तो ये एक टपल, पहला टपल था, ये हमारा दूसरा टपल, ये दोनों मिलके क्या बना हमारा? नेस्टेड टपल। ओके फोक्स, तो इसको हम नेस्टेड टपल कहते हैं। सिमिलरली जैसे हमने लिस्ट में भी इटरेट किया था गाइज, यहाँ पे भी हमारा सेम ही प्रोसीजर होता है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? यहाँ पे ऑफ जीरो 1 है, -1 क्या हमारा? 5 रहेगा, देखिए लास्ट एलिमेंट हमारा 5। और थर्ड एलिमेंट क्या है? -3, -1, -2, -3 क्या होगा? 3 होगा हमारा, देखिए 3 है। ओके, अभी सेट्स की बात करते हैं। तो सेट सेट बेसिकली क्या होता है? सेट हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है, जो इटरेटेबल है, म्यूटेबल है, और कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि हम इसके अंदर इटरेट कर सकते हैं, और म्यूटेबल है मतलब इसको चेंज किया जा सकता है आफ्टर क्रिएशन, और इसके अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट हम नहीं डाल सकते। तो एक एम्प्टी सेट हमने डिफाइन किया, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इस एम्प्टी सेट में क्या किया हमने? एक ऑटोमेशन कोड लैब हमने अभी सेट एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इस लाइन को अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिएगा हमारे एक सेकेंड, ओके, माय मिस्टेक। हाँ जी, हम्म, हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं उसने कन्वर्ट कर दिया है सारे, जो भी ऑटोमेशन कोड लैब में जो भी आपके अल्फाबेट्स थे उसको उसने कैरेक्टर सीक्वेंस में डाल रखा है, करेक्ट। और एक और चीज, अगर आपने नोटिस ये भी किया होगा, तो सी हाउ एग्जैक्टली इट हैज ऑर्डर्ड द रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली। नाउ अभी हम देखते हैं कि हम इस सेट में बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, इन दिस केस इफ वी सी, वी आर कन्वर्टिंग द लिस्ट टू अ सेट, ऑटोमेशन कोड ऑटोमेशन। तो मैं ऑटोमेशन 2 बार डालने की कोशिश करूंगा, पर आप देखोगे डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है हमारा सेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, 1 2 4 6, और उसके साथ ऑटोमेशन भी हमने दोबारा डालने की कोशिश की, बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू टेक व्हाट गाइस? डुप्लीकेट एलिमेंट्स। नाउ एक्सेस कैसे करते हैं? सिमिलरली उसी ऑर्डर में, जैसे हमने कहा था इटरेटेबल है, तो इटरेट करने के लिए एक लूप चला सकते हैं, हम आगे बात करेंगे, अभी एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। ये फॉर लूप है, ये लूप मतलब कैसे दिखता है कि ये हमारा गिवन सेट है, उसमें एक एक एलिमेंट जो है वो आई डिनोट करेगा, और वही आई इटरेट करते चलेगा थ्रू ऑल द एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन सेट 1। तो हमारे इस कोड में अगर मैं दिखाऊं आपको क्या हो रहा है, तो सेट 1 में हमने क्या डिफाइन कर रखा था गाइस? व्हाट हैव वी डिफाइंड? हमने डिफाइन कर रखा है ऑटोमेशन कोड ऑटोमेशन, राइट। तो इसमें ऑटोमेशन कोड ही जाएगा, राइट, करेक्ट फोक्स, करेक्ट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ऑटोमेशन और कोड गया, फिर हम चेक कर रहे हैं, इटरेट करने के बाद हमने ये प्रिंट किया है। इसीलिए आप देख पाओगे कि जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा ऑटोमेशन और कोड हमारा रेस्पेक्टिवली प्रिंट हुआ है यहाँ पे, दिस इज। और ये करली ब्रेसेस में हम सेट जनरली डिनोट करते हैं गाइस, ओके। एंड हम ये चेक कर रहे हैं दूसरे लाइन में कि ऑटोमेशन क्या इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो हाँ ऑटोमेशन हमारा प्रेजेंट है, तो ये आउटपुट आता है क्या, ट्रू। करेक्ट गाइस। ठीक है, ये जो ऑटोमेशन कोड जो आप देख रहे हो ये इसका आउटपुट है। अगर मैं स्लैश, आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए मैं इससे एक एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अभी जैसे हम देखेंगे तो ऑटोमेशन, 1 सेकेंड, नहीं यहाँ नहीं, प्रिंट फॉर एग्जांपल एंड में हमने प्रिंट किया, ओके। हम्म एक नया प्रिंट स्टेटमेंट ही डाल देता हूँ मैं। ओके, सो अगर आप देखेंगे ऑटोमेशन कोड हमने न्यू लाइन बोला है उसको, ताकि आपको मिक्स ना हो ये दोनों। तो हमने क्या बोला है, आई प्रिंट होते चलेगा, और ऑटोमेशन कोड उसने प्रिंट किया एक एक एलिमेंट इटरेट करके प्रिंट करने के लिए, और वो चेक किया ऑटोमेशन है क्या प्रेजेंट सेट वन में, तो हाँ वो प्रेजेंट है, इसीलिए ट्रू आया है। दिस इज अबाउट सेट। डिक्शनरी भी जैसे हम देख पा रहे हैं गाइस, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी हम हमेशा जब भी आप देखोगे डिक्शनरी यूज होते हुए, डिक्शनरी हमेशा हम की और वैल्यू पेयर में लिखते हैं, ठीक है। उसका एक रेस्पेक्टिव की होगा और उसका रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे। तो जैसे देखेंगे कर्ली ब्रेसेस में हम डिक्शनरी लिखेंगे, हमारे एम्प्टी डिक्शनरी हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं। और अगर कोई वैल्यू है, जैसे की है मेरा 1 और वैल्यू क्या है ऑटोमेशन, 2 है मेरा की और वैल्यू उसका क्या है कोड। तो इसी तरह हमने की और वैल्यू डिफाइन कर रखा है। जैसे ये कोड अगर मैं प्रिंट करूंगा, अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, 1 ऑटोमेशन, 2 कोड, 3 लैब। वैसे ही मल्टीपल, जैसे ये डिक्शनरी अगर मैंने प्रिंट करने की कोशिश करी, तो इस केस में क्या आएगा हमारा, अगर आप नोटिस करेंगे 1 जो है हमारा की है और लिस्ट जो है हमारा वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इंटीजर नहीं है, इट इज अ लिस्ट। ओके, और यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेशन कोड लैब डाल रखा है हमने, तो यहाँ पे हम डिक्ट की जो फंक्शन है, फंक्शन के थ्रू हम इसको एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं गाइस। ओके, सो दिस वी आर क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग द फंक्शन। और फिर हमने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, लास्ट में अगर मैं दिखाऊं, सो लास्ट बेसिकली हम लोगों ने एक नया डिक्शनरी डिफाइन किया जहाँ पे 1 की है मेरा और ऑटोमेशन उसका वैल्यू है, एंड देन 2 की है और कोड उसका वैल्यू है। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज लिस्ट ऑफ टपल बेसिकली गाइस, राइट। तो उसी को ही हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, दैट इज व्हाट इट इज। सो ये, और हम फेच कैसे करेंगे, वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम देख लेते हैं गाइस। तो डिक्शनरी हम क्या होता है, डिक्शनरी में जैसे मैंने बोला था की और वैल्यू होती है, राइट। तो डिक्ट ऑफ जब हम देते हैं तो डिक्ट ऑफ की देते हैं, की जो हम लोग दे रहे हैं, तो इस की का क्या वैल्यू होगा वो प्रिंट करना है। तो हमने क्या बोला, नेम क्या होना चाहिए, नेम का क्या वैल्यू है यहाँ पे, कोड, तो ये आउटपुट आया कोड। और गेट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम की दे दें या फिर हम इंडेक्स, मतलब रेस्पेक्टिव वैल्यू दे दें कि भाई हमको ये रेस्पेक्टिव एलिमेंट चाहिए, थर्ड एलिमेंट हमको चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, लैब। सो दिस यू आर यूजिंग इट वाया गेट और दिस यू आर यूजिंग इट वाया की। दोनों तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे डिक्शनरी को। आज के सेशन में हम लोगों ने डेटा टाइप देखा गाइस, हम लोगों ने देखा कि फंक्शन क्या होता है। एक एक प्रोग्राम देखते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। अभी जैसे ये करंट प्रोग्राम है, ये हमारा प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम लिख रखा है हम लोगों ने। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कहता है कि ये एक, जैसे ये डेफ देख पा रहे हो, आपको पता चलेगा ये इस प्राइम एक फंक्शन है जो नंबर एज अ पैरामीटर ले रहा है। और ये नंबर हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। और ये इटरेट करेगा हमारा लूप, कहाँ से इटरेट करेगा, अभी जैसे फॉर लूप मैंने बताया था, आई इटरेट करे कहाँ, बेसिकली आई कहाँ इटरेट करेगा, हम बोले रेंज। जब भी रेंज बोलते हैं तो रेंज की जनरली तीन चीजें होती हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से होने वाला है और एंड कहाँ तक होगा और कैसे चलेगा। अगर हमने तीन पैरामीटर्स में सिर्फ दो ही पैरामीटर दिया, इसका मतलब है वो डिफॉल्ट एक एक कर से इंक्रीज हो रहा है वो रेंज। तो हमारा इसका ये कहना होता है हमेशा, देखिए जो पहला जो रेंज की वैल्यू होती है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू एंड इट विल एंड विद दिस वैल्यू एक्सक्लूडिंग दिस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर 4 दिया है यहाँ पे, तो क्या आएगा वो यहाँ पे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड विल गो फ्रॉम 4 इंटू 0.5। मतलब ये बेसिकली आप सोचो कि इसको हम आधा से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो इस केस में इट बिकम्स व्हाट गाइस, 4/2, सॉरी 2 हो जाता है, 2 + 1 3। सो हम 2 से लेके 3 तक बेसिकली हम जाएंगे टू चेक करने।
तो उस केस में गाइस व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज हम चेक करेंगे अगर क्या वो नंबर, अभी जैसे प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल, बाकी किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हम वो चेक करेंगे, अगर वो नंबर जो भी हम इटरेट कर रहे हैं आई इस नंबर के शुरू से लेके वन से लेके टू, जैसे यहाँ से टू से लेके फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा बहुत बड़ा नंबर है 98 95, तो 98 अगर नंबर है तो ये टू से चले जाएगा हमारा 49 तक इटरेट होते होते। तो ये चेक करेगा 2 3 4 5 क्या ये सारे नंबर कोई भी एक नंबर इसको डिवाइड करता है, अगर एक नंबर भी डिवाइड कर रहा है तो हम बोल देंगे नहीं इट इज नॉट प्राइम। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो पाए मतलब ये कंडीशन हमेशा फॉल्स आई है, तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। और एक और चीज, अगर हम कंसोल से इनपुट देना चाहते हैं, अभी तक हम कोड में डायरेक्टली वैल्यूज असाइन कर रहे थे, अगर कंसोल से मुझे इनपुट देना है तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट लिख सकते हैं और ये गिवन स्ट्रिंग आएगा, तो स्ट्रिंग लिख के आएगा नीचे एंटर अ नंबर, और जो आप नंबर डालिएगा वो जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ, यूजर इनपुट में। और ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, इस प्राइम को हमने कॉल कर रहे हैं, कहाँ कॉल कर रहे हैं, अगर ये इस प्राइम हमारा जो इनपुट है उसको इवेल्युएट करेगा, और जो इवेल्युएट करेगा अगर वो ट्रू आया तो ये प्रिंट करेगा, अगर वो फॉल्स आया तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। और हमने कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया है जो जो उस केस में हमारा एक्सेप्शन आ जाए। तो इसलिए अगर आप देखोगे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या यूज किया, ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई मतलब अगर इस ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन ऐसा आता है जो आप जो आपके कोड को स्टॉप कर दे, उस केस में ये क्या आ जाएगा, उस एरर के लिए, बेसिकली उस एरर के लिए हमारा एक्सेप्ट में के ब्लॉक के अंदर जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। ओके, अभी हमने सिर्फ ऐसी कॉल किया, यहाँ पे अगर देखा हमने मेन फंक्शन में डाल के लिखा, तो ये मेन फंक्शन के थ्रू हम इस प्राइम फंक्शन को या मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। अब मैं रन करूंगा रेस्पेक्टिव कोड, ये हम मेरे से इनपुट लेगा, अगर आप जस्ट वन सेकंड लेट मी रन द कोड। हाँ, एंटर अ नंबर, अभी जैसे मैंने नंबर 47 दिया, देख रहे हैं 47 क्या है हमारा, प्राइम नंबर। तो इसी तरह दिस इज अ जनरल प्रोग्राम, आगे हम और प्रोग्राम करेंगे तो हम लॉजिक पे और बात करेंगे, but in detail I hope everyone is clear with this, and I hope if you like the video guys, please feel free to subscribe the channel, like the respective video, and also share it with everyone so that it can be fruitful for anyone who is new to automation. Thank you everyone, have a great day ahead.